Okay. So tell me. Yeah, I am also Uh, very fine and nice, Amit. okay. Had you take a lunch? No, till now, after this session, I will take my lunch. Okay, but I already take a lunch. Yeah, Had it. I had. actually, what happened today in my home, we have Mm-hmm. some puja. So Okay, today is Purnima and yeah, exactly. That's why they Mhm. are busy in puja. Uh, and no issue. I will take it after 2:30 after completing Okay. this session. Mm-hmm. So tell me what you first share with me what you want to share. As you said that I want to share something. Because just I'm close my door, Okay. then I mm. Before 2 years, I am very serious about my job and I am working so hard and I had achieved and most powerful and I am the best in 180 people's around 27 17 in same rank with me in working in my company, but I am the best. Everyone says I am not saying about because after some time 2021 I married with a girl of 4 years. We are in relationship. Relationship is not for that type of relationship we meet family concerned and which each other and meet with us. After I got married, but now I want to divorce because she is not mentality for family. But that's the reason I am facing so lots of travel. Which types of action I take? I stay with her and I leave left. So, but now I'm so this is my critical moment because I have one mother and I have mother, father, and one elder brother. A brother um, was handicapped, but brother is handicapped. He he don't work any, and she is totally depending for me. So I want that type of girl. She fulfill the mentality of familiar mentality, but I watch for my life partner, and I am thinking about this is not perfect for my family. So mm, I want to divorce. So I'm going to Canada. Okay. So you already had taken the decision or you already had taken the steps. आपने Before डिसीजन ले लिए है और डिवोर्स का नहीं 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 प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर चुके हैं. नहीं नहीं that time no anyone's कोई नहीं जानता no anyone's know that कि I take this types of decision. I am taking this types of decision because my before 10 months ago my father will sick. I am already said you Yeah, uh, you already uh, shared with me all those uh, things. all this thing or this type that time my wife already facing a trouble with her knee. Her knee is swelling and I am my father in ICU and her my wife's knee are totally मतलब फुल गया था swelling. That time I'm calling her father and saying आप इसको लेकर जाइए you and and आप आप देखिए आप हाँ हिंदी आप में भी बोल सकते हैं, कोई कोई बात नहीं. आप जो नो आई एम आपको. ओके. मिक्स में फिर आप उसको घर लेकर जाइए एंड stay for 2 months after I am returning from Calcutta. Though I realize I am going to that condition was critical, but I am saying go to home and I care totally. मतलब आई केयर टोटली मतलब मैं तुम्हें देखभाल कर लूंगा बट ही इज नॉट वेंट ही बोले कि आई एम नॉट कंफर्टेबल नाउ दिस टाइम
तो फिर मेरा भी मन में है कि after 6 months, no any persons, her father and mother and others, any person, he don't sing my father to my father is better and now, मतलब मेरे पापा ठीक है कि नहीं वो लोग देखने कोई नहीं है. So that time I'm decision this is not perfect family, so I am quit this. तो आई थिंक मैं यही सोच रहा था इतने दिन में और डिस्टर्ब था. मैंने अपना मन बना लिया कि अब मैं इससे बाहर हटूंगा. तो देखिए क्या है, आप तो अभी आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हम्म, मैंने आपके साथ बात की शायद 2-3 दिन पहले, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम दो दिन राइट, यू आर राइट. 2-3 दिन पहले तब आपको जब सुने थे आपका इंग्लिश, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिस वो अ, अंग्रेजी आपका इम्प्रूवमेंट देखा मैंने, 2 दिन पहले भी देखे हैं और आज भी देख रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारा चेंजेस हुए। मतलब देखिए, आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, ये बहुत सारा पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसे अ, ऐसे समझते हैं कि देखिए, हर सक्सेसफुल पीपल के पीछे, पर्सन के पीछे बहुत सारा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारा लोगों का। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं मिले, ऐसा ही होगा, कोई नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसको कोई नहीं देख पाएगा। नो वन कैन सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, what what is going inside your mind, what is your intention. They never, look after that. They only take care of your they only focus on your behavior। आपका जो बिहेवियर है ना, आपका जो एक्शन है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। कि सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी बच्ची है, तो उस बच्चे ने क्या किया, वो किसी भी तरह का उन्होंने नहीं जानते कि आग का इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फायर, हाउ फायर कैन बर्न हिम। ओके, सो ही go forward to touch and try to touch the fire, but his father and mother's parents scold him. Okay, and बहुत डांटा उनको। लेकिन इसका इंटेंशन क्या है? अब ऐसे देखिए, उस बच्चे का जो पेरेंट्स है, उनका इंटेंशन क्या था? उनको समझाना, ठीक है, उनको रोकना कि मत उसको टच करे, क्योंकि उसमें डेंजर है। उस बच्चे की सेफ्टी के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, बच्चे को मारा पीटा और उसके बाद उसको समझाया। तो देखिए, बिहेवियर जो है, ये तो ठीक सही नहीं है ना। और हम लोग क्या इस बिहेवियर को देखते हैं, अरे बच्चे को कितना पीटा पेरेंट्स ने, लेकिन पेरेंट का इंटेंशन तो नहीं देखते कि बच्चे के लिए क्या इंटेंशन है एक्चुअली। तो हर किसी के जिंदगी में यही चलते हैं, हम लोग देखते हैं बिहेवियर। आप जो बिहेवियर मुझसे कर रहे हो ना, इस बिहेवियर को देखते हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक खूबसूरत इंसान पड़ा हुआ है, जो इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन आपके अंदर पड़ा हुआ है, इस इंटेंशन को हम देख नहीं पाते। कैसे देखेंगे? ये तो मुमकिन नहीं है ना। आपके अंदर जो पड़ा हुआ है, जो इंटेंशन आपके अंदर है कि आप भला चाहते हैं या सबके लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, जिंदगी के सक्सेसफुल होने के बाद आप सभी को ख्याल रखेंगे, टेक केयर करेंगे, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ये सब कुछ आपके अंदर चल रहा है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी की जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी देख नहीं पाएंगे। आप बताएंगे भी तो उनका
माइंड में वो सारा कुछ ऐसे उस सेम पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। जो भी आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि अरे इसके वजह से हमें क्या क्या पेन उठाना पड़ेगा। जैसे आपने शेयर की आपके फादर का जो प्रॉब्लम था, और आपके साथ आपके एल्डर ब्रदर भी है, तो उनके साथ मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, योर वॉइस इज क्लियरली। ओके, तो अब देखिए, तो आप अ, आप, आपका वाइफ ने क्या सोचा कि मुझे क्यों इतना परेशान उठाना पड़ेगा? मुझे तो नहीं। मेरे हस्बैंड हस्बैंड से लेना देना है, मुझे तो और यही किसी से सेम लेना सेम देना थिंग। नहीं। सेम थिंग। देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे और किसी को नहीं चाहिए। मैं, बिल्कुल। मेरा हस्बैंड आ, कुछ हम्म। इनकम करते हैं, तो उससे हम्म। हम दोनों और हमारा जो बच्चे होगा और है, उसके लिए हम काफी है, हम लोग हम्म। खुश रह सकते हैं। क्यों जिम्मेदारी है, दूसरों का जिम्मेदारी क्यों उठाए? तो उनका इंटेंशन क्या है, आपको भी खुश रखना, खुद को भी खुश रखना। देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए नहीं, परफेक्ट अंदर परफेक्ट है। बहुत अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा और बहुत कुछ हुआ हुआ होगा। तो मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि देखिए उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। I already understand her understanding so many times and give up so many chances, like some 3 4 times, and I'm warning this types of action. You will work this types of way, so I need take serious action. I'm already warned this, but he don't understand to my voice and work his own thing and not perfectly and clearly, mm, जो मैं कहता हूँ जो आई एम सेइंग। ओके, तो देखिए जब कोई एडामेंट होगा खुद की डिसीजन से, एक थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जिसके अंदर, उसको समझाने से बेकार, बस यही चीज। समझाने से बेकार होगा। देखिए हम्म। नहीं तो बहुत सारा कुछ है जो उनको भी समझना चाहिए कि देखिए हमारा जिंदगी, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, और मेरे साथ अगर कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे साथ बांग्लो है, गाड़ी है, कार है, बहुत सब सब कुछ है, और मेरे साथ कोई भी एक भी पर्सन नहीं है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सक्सेस का मतलब क्या? इस जिंदगी का मतलब क्या? सक्सेस तो छोड़िए, इस जिंदगी का मतलब क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं। जिंदगी का मतलब क्या? इस रिलेशनशिप में रहना, किसी के साथ अच्छे बिहेव करना, दोस्तों के साथ मिलना, सब कुछ मिल के वी आर सोशल, वी आर नॉट अनसोशल। सो तो बहुत सारा कुछ चीजें हैं जो जिसमें से उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी वो एडामेंट है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो छोड़िए, आपने एक डिसीजन लिया, किसी बेस पे लिए होंगे, एंड आई थिंक इफ शी इज एडामेंट, she don't want to understand your point of view, then it is a very good decision you have taken. Don't carry this relationship forward. Okay, if you feel that it is not necessary to you, and definitely it is good, it will be a good decision for your life. And next thing I want to share with you, देखिए जो कुछ चल रहा है ये जिंदगी में आया है क्यों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस चैलेंज से फंसे नहीं रहना है। उसका आप एक सॉल्यूशन निकालना है। ऑब्जर्वर की तरह देखिए। ऑब्जर्वर क्यों?
इसके लिए रीजन है क्यों आपको मैंने बोला कि ऑब्जर्वर हो जाइए। देखिए, इस सेम सिचुएशन में अगर आपके पास एक दोस्त आते हैं कि और आपके दोस्त बोलेंगे कि देखिए मेरे जिंदगी में ये अमित, मेरे जिंदगी में ये सारा सिचुएशन चल रहा है यार, मुझे तो कुछ ऐसा सजेशन दो, ऐसा कुछ टिप्स दो जिसमें से हम बाहर निकाल पाए। ठीक है, और आप देखिएगा आप कितना आसानी से उनको बहुत सारा सजेशन दे सकते हैं। होता है कि नहीं बताइए? क्यों? हम्म क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर की तरह उस आदमी को देख रहे हैं। हम्म इसी तरह आप भी खुद खुद के लिए एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं, पर बनना होगा। अब देखिए जो कुछ चल रहा है, सोचिए कि आपके सामने एक पर्सन है, दूसरा एक आपका ही दूसरा एक पर्सन है अमित, जिसके जिंदगी में ये सारा चैलेंज चल रहा है। ठीक है, तो अमित क्या कर पाएंगे जो कि इसमें से बाहर आ पाए? ठीक है, क्या क्या गुड 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 चीजें गुड होगा, गुड गुड, हाँ हाँ हाँ, और दिस आपको इज देखिएगा हाँ। कितना सारा सजेशन मिल जाएगा। और उसको लिख लीजिए, उसे लिख लीजिए, एक नोट बना लीजिए। ओ फील लाइक somehow अपना इमेज तैयार करना, वी क्रिएट अ सेम इमेज एंड फील दैट सिचुएशन, फील दिस पर्सन एंड सॉल्यूट द सॉल्यूशन। हाँ, नाइस नाइस नाइस। Yeah, you will be find there are so many solutions. ओके। There are so many ways to get rid of this situation. ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा चीज है, और एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए, हर आदमी का किसी भी पर्सन का एक कंफर्ट जोन होता है, और वो आदमी क्या करते हैं, उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उसी से बाहर नहीं आ पाते। जैसे कि सोचिए, आपके आप ऐसा पोजीशन में खड़े हैं जिसमें एक नेल, दो तीन नेल आपके यहाँ चुक रहा है हम्म थोड़ी सी, तो आप क्या करेंगे, उसमें से थोड़ा हट जाएंगे। एम आई राइट? हम्म और जब ये फीलिंग आ जाएगा, ओके आई एम सेफ, इट विल हम्म नॉट पिंच मी अगेन, हम्म ये नहीं, और ये जो नेल है ये मुझे और नहीं चुभेगा। ठीक है, तो आप वहां से थोड़ी दूर जाके आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपको कंफर्ट फील होगा कि ठीक है, और तो नहीं और ये नहीं चुभेगा मुझे, तो मैं सेफ हूं। तो ये हो गया आपका कंफर्ट जोन। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे कि मुझे इस नेल को हटाना है, और इसमें से बाहर जाके कुछ और कुछ ढंग का करना है, जिसमें से मे, ये निकल पूरी तरह गायब हो जाए। मेरे अंदर यही चलता है कि जैसे कोई चीज आता है तो मेरे को जब तक वो उसका पूरा मैं उसको मतलब पूरा सर्वे करने का हाँ और ना मैं एकदम क्लियरफाई नहीं कर लूं, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलता है, या तो फिर इस पर या उस पर कोई भी चीज में। हाँ, तो यही इसी का ही जरूरत है कि आप उस कंफर्ट जोन से पूरा बाहर निकलो। जो कि ये देखिए, मैं तो एक बार बार मेरे जो पार्टिसिपेंट है सबको मैं एक बात बोलता हूँ कि देखिए, ये जो सिचुएशन आया, ये जो चैलेंज आया, इस चैलेंज आपको एक डिजर्विंग पर्सन बनाने के लिए, आपको एक डायमंड बनाने के लिए, एक कोल कोयला जो होते हैं ना, वो डायमंड कब बनते हैं? बहुत ज्यादा हाँ, प्रेशर, टेम्परेचर उसको डायमंड में कन्वर्ट करते हैं। होता है कि नहीं बताइए? बिल्कुल तो बिल्कुल। जिंदगी में यही होते हैं हम लोग, बनते कब है डायमंड सक्सेसफुल, जब ये प्रेशर और टेम्परेचर हम लोगों को, ये जो चैलेंज, मतलब चैलेंज, प्रेशर टेम्परेचर मतलब जो चैलेंज, ये चैलेंज हम लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, और हम लोगों को एक डिजर्विंग पर्सन, एक डायमंड बना के छोड़ते हैं। ठीक है, आई एग्री विथ। और जैसे आपने शेयर किए हैं कि आपने बहुत सारा कुछ डिसीजन लिए और उसमें कुछ
चीजें भी आप किए हैं, तो आप हम्म शेयर करने वाले थे। अगर आप शेयर हम्म। करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आगे बढ़ने के लिए। देखिए मैंने ये लिखा चार्ट। अच्छा। अच्छा। ये सब मेरे अंदर की कमियां थी, इसको मैंने लिखा। अच्छा। के बाद ये अपना 90 डेज का चैलेंज लिया। जिस दिन गलत नहीं कर पाता हूँ अचीव गोल, ये मेरे गोल्स है। अच्छा। ये रीडिंग इतना, कॉल प्रैक्टिस इतना, वोकेबलरी क्लास प्रैक्टिस, पॉडकास्ट। फिर अगर मैं दो ऑप्शन रखा, अगर किसी दिन मेरा बर्बाद हो जाता है तो उसके अपोनेंट में मेरे को क्या करना है, ताकि मेरे को माइंड पे ये फील नहीं हो कि मेरा लेस हो गया। तो मैं जो चीज़ अचीव नहीं करता हूँ काट कुट करता हूँ, और जिस दिन अचीव करता हूँ उस दिन उसको साइन करता हूँ। फिर ये कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने लिखा कि वाह। कंसिस्टेंसी को पूरे अच्छी तरीके से समझा कि कंसिस्टेंसी है क्या और क्या ज़रूरी है। क्या अगर होता है मेरे साथ, क्या होता है कि मैं कोई चीज़ छोड़ देता हूँ तो उसको फिर रिपीट स्टार्ट करने में मेरे को लंबा समय लगता है, क्यों होता है। फिर मैंने एक बैलेंस चार्ट बनाया अपनी ज़िंदगी का, ये सारी चीज़ों को ऐड किया। अच्छा। हेल्दी फूड, अवॉइड ओवर थिंकिंग, नो नीड पर्सन नीड, इसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ 27 तारीख से। क्या क्या चीज़ मैं, मेरी बैड हैबिट में मैं उसको अचीव करता हूँ, उसमें चेंजिंग लाता हूँ। और ये फिर रिजल्ट ओवर यूल बनाया अपने माइंड से कि अचीव मैंने 13 किया और साथ में फेलियर हुआ, मतलब ओके है, मतलब खराब नहीं है। और पहले 9 था, इसको पूरा बैलेंस को मैंने को मेरे को 28 अक्टूबर तक मेंटेन करना है। फिर ये इसी तरह का मैंने सब चार्ट बनाया है। फिर कनाडा का गोल का अपना चार्ट ये किया। अब जैसे मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं बेड में सो जाता हूँ, तो मैं बेड में व्हाइट चादर बिछाने लगा ताकि मैं बेड में बैठूं नहीं। और मैं 3 दिन से बेड में सिर्फ रात को ही सोने जाता हूँ, दिन में बैठता नहीं हूँ। अच्छा। तो गुड। ये सब काम मैं कर रहा हूँ फिलहाल। वाह। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल, डूइंग वेरी वेल। तो देखिए, आ, ये चीज तो बहुत अच्छा किए है। देखिए क्या होता है कि हम हमारा हम लोग किस चीज से ड्रिवन होते हैं, माइंड, माइंड से ड्रिवन होते हैं। तो इस माइंड को क्लियर पिक्चर नहीं देते कि कहाँ जाना है, पहुंचना कहाँ है। तो इसका क्लियर पिक्चर जब होंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, जैसे आपने किया कि ठीक है मेरा एक दिन बर्बाद हुआ तो मैं दूसरा एक यू नो रिजर्व डे भी है आपके पास, तो यही बहुत अच्छे है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का जरूरत है। मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि आप आपके काम में आएंगे। ठीक है। जी। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ, दे रहा है। देखिए, स्ट्रेटजी टू अचीव योर आउटकम। या स्ट्रैटेजी टू अचीव योर आउटकम, जो आपने कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक देखिए, है ठीक है। आपको दो चीज पता चल गया कि एक डिजायर स्टेट, जो डिजायर स्टेट है आप जहां पहुंचना चाहते हैं, और डिजायर स्टेट कैसे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगा डिजायर स्टेट के बारे में। डिजायर स्टेट मतलब योर एक्सट्रीम लेवल ऑफ गोल, कहां आप पहुंचना चाहते हैं जिंदगी में। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। दिस इज योर डिजायर स्टेट। तो डिजायर स्टेट में क्या होता है, दिस इज योर आउटकम। तो इस आउटकम में क्या क्या एरियाज है, देखिए, एक तो हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया सक्सेस, तीसरा हो गया लव, रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप, चौथा हो गया वेल्थ। ठीक है, और स्पिरिचुअल का एक, इस पांच एरिया को आप ले लेते हैं। पांच एरिया ठीक को आप ले लेते हैं कि आपका हेल्थ, सोचिए कि आपका हेल्थ क्या कैसा होना चाहिए, जो आप चाहते हैं उसको। है। तो उसके बारे में टोटल एक क्लियर पिक्चर कीजिए, लिख के भी और इमेजिन करके भी। मेरा हेल्थ ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में टोटल क्लैरिटी आ जाएगा आपको। हेल्थ क्या क्या
होना चाहिए, क्या क्या आपके सोचिए कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि सोचिए कि आपका वेट अभी 84 केजी, ओके, ठीक। so you ओके। need to you want to reduce it to 70 or 60। 65 kg, ओके। okay, हम्म। so this is your outcome. ओके। दिस इज माय 65 आउटकम। kg, yeah, 65 kg हम्म। weight is your outcome, and you want to very healthy, energetic, you want to be in your life, always very energetic, healthy, you want to do exercise also, whatever it is, this is your health outcome, outcome about your health, what you want actually, हो गया। तो या। ये हेल्थ का आउटकम हो गया। एग्जाम्पल से अब शायद आप समझ चुके हैं है, जो भी जो आप पाना चाहते हैं हेल्थ के बारे में, तो वो ये हो गया आपका आउटकम हेल्थ के लिए। दूसरा सक्सेस के लिए, सक्सेस के लिए क्या क्या आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, ठीक है, जी। जो भी कुछ, मैं एक एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आप एक बांग्लो खरीदना चाहते हैं समुंदर के बीच में, समुंदर के किनारे के पास में, ठीक है, तो ये हो गया आपकी आपका आउटकम सक्सेस के बारे में। आप एक कार खरीदना चाहते हैं, उस कार क्या, कौन सा कार होगा, इसके बारे में टोटल, ये हो गया आपका सक्सेस का आउटकम। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि लोगों ने आपको रेस्पेक्ट कर रहा है, लोगों ने आपको आप नाम से आपको पहचानते हैं, आपका नेम फेम बहुत बड़ा हो गया, और बहुत सारा लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, आपका जो रेस्पेक्ट, लोगों के बीच में रेस्पेक्ट बढ़ रहा है, और आप कहीं पर भी है वहां पे लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं, तो ये सारा आपका सक्सेस का लेवल हो गया। सोच लीजिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल की तरफ है, ये आपके हिसाब से होगा। तो तीसरा हो गया, दूसरा हो गया सक्सेस, तीसरा हो गया वेल्थ। क्या क्या वेल्थ आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, हो सकता है आप 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो ये हो गया आपका वेल्थ का। और कुछ प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, और कुछ भी हो ऐसा कुछ जो वेल्थ आपके हिसाब से, आपके लिए जो वेल्थ है, इसका आउटकम आप बना लिए। नेक्स्ट हो गया ये, नेक्स्ट आप ऐसे ही स्पिरिचुअल लेवल का लीजिए, और लव एंड रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप के लिए अलग अलग बना सकते हैं, लव के लिए अलग बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो ये पांचों एरिया में आपने सोच लिया कि आप क्या क्या पाना चाहते हैं जिंदगी में, इसका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटकम जो आप पाना चाहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में क्लैरिटी आ गया, आउटकम के बारे में कोई क्वेश्चन है आपके पास? नो क्लियर, नो 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 नो। ओके। नेक्स्ट, आप तो आप देख लीजिए आपका प्रेजेंट स्टेट, आप आई डू नॉट हैव अ। प्लीज। नहीं, I don't have a question, any question. हाँ, देखिए, आप आपको जानना होगा प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, प्रेजेंट स्टेट में आप चैलेंज ही देखें, चैलेंज भी देखना है, और व्हाट व्हाट यू एक्चुअली हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव। आपको तो आउटकम तक पहुंचना है, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो प्रेजेंट स्टेट आपका कहाँ है, आप कहाँ पे है अभी इस वक्त, आप कहाँ पे है। जैसे कि आप सोचिए कि आप जाना चाहते हैं अमेरिका,
एक एग्जांपल लेते हैं, आपका हम्म डेस्टिनेशन है अमेरिका, तो आप अभी जहां पर भी है, आप अभी बिहार में है, सोच लीजिए बिहार में कोई किसी गांव में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो उस गांव से आपको क्या करना पड़ेगा, नजदीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा। पहले आपको हम्म देखना होगा कि आपकी डेट कब तक आप पहुंचना चाहते हैं अमेरिका, ठीक है। उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लाइट का टिकट लेना पड़ेगा नजदीक एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हम्म और क्या देखना पड़ेगा, मुझे क्या क्या यू नो घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या और व्हीकल्स का जरूरत है, और क्या क्या रिसोर्सेस का जरूरत है, और वहां जाने के लिए मुझे कितना सारा पैसे का जरूरत है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट स्टेट। तो व्हाट यू हैव एक्चुअली एंड व्हाट यू डोंट हैव। जैसे कि आप सोचिए, तो आपको अमेरिका जाना है, तो आपके लिए लागेज चाहिए, लागेज का एक बैग, बड़ा बैग चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे ना। आप प्लेन का टिकट हम्म। खरीदेंगे, घर से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आप कुछ अरेंजमेंट करेंगे, तो ये सारा होगा ना। तो प्रेजेंट स्टेट के बारे में पूरा आपको ध्यान देना हम्म है कि आप व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव। गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होगा हम्म वहां तक पहुंचने के लिए। तो स्ट्रैटेजी क्या क्या होगा, देखिए, इसके हिसाब से ही आपका जो डे शेड्यूल वो बनेगा। स्ट्रैटेजी जैसे आप 6 महीने की और एक एक साल की एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इसको हम गोल कहते हैं। तो फर्स्ट सपोज यू वांट टू, एक एग्जांपल लेते हैं, यू वांट टू अचीव 100 करोड़ विद इन 10 years और 20 years, वट एवर इट इज। तो आपको, आप देख रहे हैं कि अभी आप 10,000 पर महीना आपका इनकम जनरेट हो जाते हैं। तो इस इनकम से 100 करोड़ तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल लग रहा है, होता है कि नहीं ऐसा। बिल्कुल। आप इसको चांग साइज में, छोटा छोटा चांग साइज में डिवाइड कर लीजिए, ताकि ये आसान हो जाए। आप कैसे कर सकते हैं कि ठीक है, मेरा अभी प्रेजेंट स्टेट है, आई एम अर्निंग 10,000 पर मंथ, बट माई नेक्स्ट माइलस्टोन will be that I will earn 1 lakh per month after 1 year. I want to earn 1 lakh per month. Getting my point? So this ओके will ओके। be, so this will be your first milestone, first goal. Okay, तो हो गया। आप 2023 में है, 2023 अक्टूबर, सॉरी सितंबर, अक्टूबर ही हम्म समझिए। तो अक्टूबर हम्म से लेके 2004 अक्टूबर तक आपको कहां पहुंचना है, 1 लाख रुपया पर महीना, ये आपका नेक्स्ट गोल माइलस्टोन। तो इसको करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए। हो सकता है जैसे आपने बोला मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे कनाडा जाना है, बाहर कहीं जाना है, तो ये हो हम्म। गया आपका आउटकम। तो कनाडा जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इंग्लिश सीखना 14 लाख और आइल्स के एग्जाम देना होगा, और 14 लाख जरूरत होगा बैंक में फंडिंग दिखाने के लिए। तो जो भी रिसोर्सेस का जरूरत है उसको आप एडॉप्ट कीजिए। कहां से आ सकता है उसको, कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं कोई बिजनेस करके, या मैं एक्स्ट्रा सर्विस देके, कुछ भी हो, जो पैसा चाहिए, जो कुछ चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसको आप गैदर कीजिए। आप उस साल में, एक साल में आप देख रहे हैं कि अरे ये काम तो इजी हो गया, तो 1 लाख रुपया आना स्टार्ट हो गया, उसके लिए सब कुछ हो गया। तो उसके बाद दूसरा जो माइलस्टोन है,
उस माइलस्टोन को आप फिक्स कीजिए। अभी मुझे कहाँ पहुंचना है, 2-3 लाख पर महीना पहुंचना है। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए, क्या क्या करना होगा वो देख लीजिए। ऐसा करके माइलस्टोन बनाते जाइए एक एक करके, और अचीव करते जाइए। हो सकता है कई कई बार ऐसा नहीं होगा कि आपका माइलस्टोन पूरा का पूरा अचीव हो, अगर लेकिन 100% सोचेंगे तो 80% तो आएगा। हाँ, सोचिए कि 80% हो रहा है, 20% नहीं हो रहा है, लेकिन आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि ठीक है, 20% नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है मैं फेल हूं। आई एम सक्सेस बिकॉज यू डिड इट ऑलमोस्ट 80%, सो यू आर अचीव। almost 100% successful, so it is okay। बट ऐसा भी होगा जब आपके पास पूरा क्लियर पिक्चर होगा डिजायर के बारे में, आउटकम के बारे में, और एक्सट्रीम लेवल गोल के बारे में, और प्रेजेंट स्टेट के बारे में, और आप ऐसे ही स्ट्रेटेजी बना के आगे जाते रहेंगे, तो ऐसा भी होगा कि आप ऐसा आपके लिए कुछ वेज, रास्ता ओपन हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं है, हम्म। जो आपके आउटकम तक बहुत इजीली पहुंचा देगा, वो भी टाइम के आगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यू आर टेकिंग एक्शन रेगुलरली, यू आर टेकिंग फीडबैक रेगुलरली, एंड यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट द रिसोर्सेस, ट्राइंग टू डेवलप योर सेल्फ। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। तो आप ऐसा करके प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना के, उसके लिए डे शेड्यूल, जैसे आज मैंने ये काम करूंगा, जैसे आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, तो ऐसे ही शेड्यूल करके बना के डे शेड्यूल बना लीजिए, और उसके हिसाब से। और ऐसा नहीं है, देखिए, डे शेड्यूल आपका होगा, कुछ टाइम फेल हो जाएगा डे शेड्यूल, लेकिन आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि ठीक है, आज नहीं हुआ, मैं कल थोड़ा सा ज्यादा एफोर्ट दूं तो इसको भी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? या। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी होना, डे शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? Today I am making this strategy and thinking about my goals and achievement, and then I tomorrow I make this chart and properly focus my strategy to achieve your outcome. This is I take I take to this screenshot and apply for my life. Okay. Apply for. Yeah, definitely. I will share with this chart also to you, this video also, so that it may help you. Okay. ओके, नो इशू। एंड देखिए, यही इसको एक एक, जब आप एक एक माइलस्टोन को अचीव करते जाएंगे ना, तो आपके खुद के अंदर जो यू नो व्हाट आई कैन से, जो मोटिवेशन, ये भी बढ़ेगा। जो इंटरनल पावर आप ढूंढ रहे हैं, उस इसको भी आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि खुद के अंदर एक विश्वास आएगा, एक बिलीफ सिस्टम, आपका जो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा कि मैं, अरे, एक एक स्टेप मैं मैं कर सकता आगे हूँ। बढ़ रहा हूँ बहुत अच्छे से। हाँ, प्लीज बताइए। मतलब मेरे को ये फील होगा कि आई एम अचीव ऑल द गोल्स एंड मतलब मेरे को इंटरनल पावर इज विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। या आई कैन डू इट, ये जो फीलिंग, ये फीलिंग आएगा खुद के अंदर, आई कैन डू इट, ये बिलीव, ये आएगा। तो इसका जरूरत है, आप खुद को विश्वास करते हैं तो दुनिया, और और दुनिया आपको विश्वास करे या ना करे, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब जिंदगी से विश्वास उड़ जाएगा, खुद के ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ हट जाएगा ना, उसी दिन आदमी का जीवन भी खत्म हो जाते हैं। तो ये विश्वास
के लिए ये छोटा छोटा जो चांक साइज आपने डिवाइड किया है, मैंने 1 साल के लिए बोला कि एक माइलस्टोन 1 साल के लिए बनाइए, ऐसा ऐसा आप कर सकते नहीं हैं, या 6 महीने के लिए बना सकते हैं, 3 महीने के लिए बना सकते हैं, एक टारगेट छोटा छोटा, और ये आपका नहीं माइलस्टोन होगा। because I need because you provide me, this is very helpful for my goals achievement, because that time I am not have lots of money, and not I don't have money in my bank account. But after 1 years, after 6 months, I showing my bank account to embassy and properly to um, show up of 8 to 10 lakh rupees. This is my this is most important. And now this time I am preparing for 4 to 3 months before, to how can I consume this money and show up my account in embassy. So I will make my strategy and follow this outcome sources. This is both need helpful. मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ. Yeah, I can understand. You are actually you are making great. You are doing great. What I am understanding. फिर भी देखिए, मैं कुछ कुछ चीजें आपको भी काम आएगा, जैसे कि अ, ये काम आएगा बहुत ज्यादा मेरे लिए. हाँ, इसको मैं. हाँ. या तो रिसोर्स को, और रिसर्च के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या क्या चाहिए मुझे, कुछ पढ़ना है, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेना है, कुछ नॉलेज लेना है, कुछ भी, उसको आप समझिए। मुझे शायद जैसे आपने बोला कि मैं 10 लाख तक पहुंचना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं मेरा बैंक अकाउंट में, तो हो सकता है इसके लिए आपको कुछ फाइनेंशियल नॉलेज का जरूरत हो, तो हम्म. उस फाइनेंशियल नॉलेज को ले लीजिए। ऐसा बात नहीं कि देखिए, नॉलेज काम में आएगा, नॉलेज, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस आप थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, क्या ऐसा क्या कर रहा है इंसान जिसमें से उनको मिल रहा है, तो ये हो गया आपका रिसोर्स। ठीक है, तो इस रिसोर्स को बढ़ाइए। बढ़ाने के बाद देखिए आप कितना फास्ट आपका जो आउटकम है उसको अचीव कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो जो भी हम्म. जो भी चल रहा है, आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के ग्रोथ के ऊपर, खुद के माइंडसेट के ऊपर, कि बहुत सारा डिस्टर्ब इस वक्त में, जब एक्चुअली होता क्या है जानिए, समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग डिस्टर्ब होते हैं अंदर से, तब हम्म. बहुत सारा चीज, बाहर का चीज हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हम लोग अट्रैक्ट करते हैं वो डिस्टर्बेंसेस। अंदर का जो डिस्टरबेंस चल रहा है, उसी डिस्टरबेंस से हम लोग बाहर का डिस्टरबेंसेस को भी अट्रैक्ट करते हैं, इनवाइट हम्म. करते हैं। तो जैसे कि जब क्या होता है कि जब माइंड डिस्टर्ब रहता है तो किसी का हॉर्न बजाना भी अच्छा नहीं लगता है. वही आप हैप्पी हाँ, रहते हैं तो वो चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जैक्टली exactly. तो ऐसे ही खुद को एक ऑब्जर्वर की तरफ देखिए, ऑब्जर्वर होके देखिए क्या क्या चल रहा है, और इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। और दो चीज के बारे में, प्रेजेंट स्टेट, डिजायर स्टेट के बारे में पूरा का पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है, सपोज जैसे कि मनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल सक्सेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके ऊपर पहले काम कीजिए। दूसरा, आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। और स्ट्रैटेजी, जब आप डे शेड्यूल बनाएंगे ना, तब देखेंगे कि उस डे शेड्यूल में आपका पहले आप मनी के ऊपर क्या क्या काम करेंगे, उसका शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए हेल्थ का, तो हेल्थ के लिए आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, और इतना टाइम जिम करूंगा, कुछ भी हो वो बना लीजिए। तो डे शेड्यूल में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है वो शेड्यूल हो गया।
होगा कि नहीं, कि मानी के लिए, बिल्कुल। मानी सक्सेस के लिए मैं ये करूंगा इस आज से, ठीक है, अगला 3 महीने तक, एक साल तक हो गया। दूसरा आपका हो गया हेल्थ, तो हेल्थ के लिए मैं ये चीजें करूंगा अगले 1 साल तक, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया कि लव एंड रिलेशनशिप, तो इसके लिए मैं ये सारा स्टेप लूंगा इस साल में, तो ये हो गया आपका प्लान। तो इस तरह टोटल प्लानिंग बनाइए और आगे और बढ़िए। स्टेप क्लियर रहेगा तो फिर क्या करे जो थिंकिंग ऑलवेज ऑन रिमाइंड माय माइंड, हमेशा जो आता है क्या करना चाहिए क्या करना है, ये सवाल मेरे को पूछना नहीं पड़ेगा, मेरे को पता रहेगा कि मेरे को इसके बाद क्या करना है। दिस इज Exactly, गुड। exactly. हम्म। Why, why people are starting? Because they don't know what to do. हम्म। एक तो दैट्स द पता मेन नहीं है प्रॉब्लम। what they are doing, why they are doing, जो हम्म। कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। और तीसरा हम्म। चीज, क्या करना है मुझे। मेरे पास हम्म। 24 आवर्स है, आपके पास हम्म। भी, और बिल गेट्स हम्म। के पास भी। हम्म। डिफरेंस क्या है, बिल गेट्स हम्म। और जो सक्सेसफुल पर्सन है वो क्या करता है, डे को जो 24 आवर्स है डिवाइड उसको कर देते हैं। उसको प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं। ऐसा नहीं है उनके जीवन में चैलेंज नहीं है, हो सकता है उनके जीवन में इससे भी ज्यादा चैलेंजेस है, इससे भी ज्यादा चैलेंजेस है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस चैलेंज से बाहर आ सकता है क्योंकि उन लोग स्टेप ले रहा है हर हम्म। वक्त, उस तरफ बढ़ रहा है कि उस चैलेंज को तोड़ना है, चैलेंज को, इस ऑब्स्टाकल को ब्रेक करना है, डेमोलिश करना है। तो यही आप यही काम में आप बहुत अच्छे, बार बार मैं बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ और कुछ ये सारा चीज जोड़ लीजिएगा तो बहुत देखिएगा चेंजेस, कितना सारा चेंजेस हम्म। आएगा, क्योंकि क्योंकि मेरे को गोल अपना पता रहे कि मेरे को कितने दिन में क्या अचीव करना है, कितने दिन में क्या अचीव करना है। अभी सिर्फ पता है कि मेरे को 1 बाल्टी पानी लाना है। अगर मेरे को पता रहेगा कि एक हफ्ता में अगर हम 3 मग पानी लाते हैं तो मेरा इतना दिन में ये पूरा हो जाएगा, तो मेरा माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा। और मेरे को हर अचीवमेंट के साथ अपना सक्सेस का कॉन्फिडेंस और विल पावर मिलता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट के बाद मेरे को हर कुछ हल्का हल्का नजर आएगा, ना कि भारी, जैसे इस वक्त अभी लगता है आइल्स देना है मेरे को, जैसे माइंड में होता है वो चीज हल्का हो जाएगा। आई वो क्लियर डिले थिंक। हाँ। करते रहेंगे, कुछ नहीं, वो डिले करते रहेंगे। माइंड को आप जब एक टाइम बाउंड होता है, तो उस टाइम में जब आप नहीं डालेंगे ना, तो माइंड क्या करेगा, डिले करेगा, अरे हम्म। छोड़िए मेरे पास तो टाइम है, ठीक है वो कल कर लेंगे, हम्म। ठीक है परसों कर लेंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है ये पावरफुल माइंड का काम ही क्या है, आपको रिलैक्स रखना, कंफर्ट जोन में हम्म। रखना। तो काम करने में हम्म। सभी को दिक्कत आते हैं, तो आपका माइंड क्या करेगा, अरे छोड़ यार, आज तो थोड़ा रिलैक्स कर, कल कर लेंगे, हम्म। तो वो डिले होते जाएंगे। इसीलिए टाइम फ्रेम में उसको बांध बिल्कुल दीजिए बिल्कुल। कि हम्म। इस टाइम के अंदर मुझे ये अचीव करना है। और दूसरा चीज, और एक चीज आपको बताता हूं, देखिए सक्सेसफुल और एवरेज इंसान का जो डिफरेंस है, एक सक्सेसफुल इंसान और एक एवरेज और अनसक्सेसफुल इंसान के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है जानते हैं। एक हम्म। अनसक्सेसफुल और एवरेज पर्सन जब डीरेल हो जाते हैं, अपना ट्रैक से हट जाते हैं, तो वो कभी उस ट्रैक में रिटर्न आने की कोशिश नहीं करते और आने की आने के लिए स्टेप नहीं लेते, डिले करते रहते हैं ट्रैक में आने के लिए। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान वो होते हैं जो डीरेल होने के बाद भी तुरंत ट्रैक में आने की सडनली। कोशिश करते हैं, तुरंत आ जाते हैं ट्रैक में। और ऐसी चीज में ही डिफरेंस हो जाते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच में। गेटिंग द क्लैरिटी।
जैसे पहले मेरे मेरे अंदर भी ये कि डिले करने की आदत बहुत ज्यादा है, और इससे क्या होता है कि वो चीज बहुत लंबा डिले हो जाता है। और ये चीज को मैं क्लियर समझाऊं, अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, अब से मैं प्रॉपरली जो चीज मेरे को करना है वो करना ही है। ये मैं सोच रहा हूँ। गुड, गुड, वेरी गुड। तो आप बताइए, आप कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, आप कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि अब मैं स्ट्रेटेजिक गोल बनाऊंगा, तो मेरे को 3 पार्ट में बनाना है। एक तो सबसे पहले मेरा फिलहाल का इंग्लिश का गोल्स रहेगा, वो तो है ही है, वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। और फिर मेरे को इसके बाद जो 10 लाख रुपया फंडिंग दिखाना पड़ेगा अकाउंट्स में, उसके लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। और मेरे पास ज़्यादा, मैं बंदों के साथ रहता नहीं हूँ, मतलब मेरे पास बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड पर्सन के साथ रहता हूँ, बहुत लिमिटेड, मतलब लिमिटेड, मतलब मेरे जितने क्लोजअप है उतने ही। मैं एक्स्ट्रा किसी के साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे को मतलब अंदर से नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा मतलब प्लांट में 10-12 साल काम करते करते मेरे अंदर थोड़ा इगोस्टिक है, कि मैं थोड़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि मैं लटर पटर उठना बैठना नहीं करता किसी से। तो वो स्ट्रेटेजी मेरे को तो बनाना होगा, क्योंकि वो 10-12 लाख रुपए अकाउंट शो करने के लिए मेरे को दिक्कत होगा। वो तो मैं बनाऊंगा, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। और दूसरा, कि यहाँ से मैं 3 तरह का सोच, आपके बात के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था, आज ही सोचा हूँ कि मैंने 3 चीज सोचा है। सबसे पहले तो अचीवमेंट मेरा ये नॉर्मल आइल्स रहेगा। फिर इसके बाद मेरा अकाउंट दिखा के मेरे को कनाडा मूव करने का। तो कनाडा मूव करने के बाद वहां के लिए, वहां के हिसाब से अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना, जब वहां मैं पहुंचता हूँ। और बाय द वे, अगर मैं कनाडा नहीं जाता हूँ, 3 महीने बाद मैं एग्जाम दे के फिर से अपनी कंपनी में जाता हूँ, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अच्छा। गुड। तो ये बन हाँ, तो यही करना चाहिए मेरे को। हाँ, गुड, गुड, यही यही कीजिए, यही कीजिए। देखिए, स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए। एक बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खड़े होते हैं स्ट्रैटेजी के वजह से। आप जो टनल बन रहा है, ये बनता है स्ट्रैटेजी के वजह से। आज जो आपने देखा है कि इंडिया, इसरो इसरो ने चांद हम्म पर भेजे हैं, हम्म ये हम्म हम्म। स्ट्रैटेजी के वजह से। तो स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? आ, और स्ट्रैटेजी लिखते जाइए। देखिए, हर एक ऐसा नहीं है कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाया वही सही सही हो। तो देखिए क्या है, एक स्ट्रैटेजी फेल हो गया, दूसरा स्ट्रैटेजी बनाइए। ऐसा नहीं है कि अरे स्ट्रैटेजी फेल होगा, मैं क्या करूं, सोचने बैठिए। अभी ये जो मैं स्ट्रेटेजी बैठा हूँ, अपना स्ट्रेटेजी मतलब बनाऊंगा, तो नाउ आई एम मतलब लॉट्स 2 या 3 डेज आई एम कम्प्लीटली फोकसिंग एंड टोटली, कि क्या सही है कि नहीं है, मेरा माइंड क्या बोल रहा है, पूरा एक पूरा सब कुछ सोचने के बाद ही इस पे आगे प्रोसेस पे डालूंगा ना। एग्जैक्टली exactly. देखिए, और एक चीज बताता हूँ। क्यों आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज्यादातर लोग 90, ऑलमोस्ट 98% पीपल, दे नेवर वर्क ऑन देयर माइंड, दे नेवर ट्राई टू जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये काम नहीं करते। और आप ये काम को करना शुरू कर चुके हैं। और यही यही मेन रीजन है जो आप जल्दी अपना सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग और टेकिंग एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा। तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज मिसिंग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं, एक्चुअली कोच जो सिखाते हैं ट्रेनिंग में, जो बोलते हैं कि आप सोचने बैठिए, पूरा क्लियर विजन आपको होना चाहिए, और इसके साथ यूनिवर्स का कनेक्शन बनेगा, तो जो कुछ आप मांग रहे हैं वो मिल जाए। ऐसा नहीं है। आप घर में बैठ कर सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। टेकिंग एक्शन, your dream will be fulfilled if you take action in proper way. Every day, if you take action, if you take step towards your outcome, then only you can achieve your success, your goal, whatever it is. Okay. और आपने और एक चीज बताया कि आपका जो सर्कमस्टेंसेस है, जो सराउंडिंग्स का लोग है, वो उनके पास ऐसा मेंटेलिटी नहीं है। और
जो आपने बोला कि क्या उनका सोच विचार कुछ अलग सा है। तो देखिए इसमें एक्चुअली होता है क्या, हम लोग जब जो सरकमस्टेंस के अंदर बीच में रहते हैं उस तरह ही हमारा माइंडसेट, मतलब बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंस बन जाते हैं। लेकिन आपने ये प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपका माइंडसेट था उसको चेंज करना शुरू कर दिए, तो ये चेंज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। 2-3 बार डाउट फील होगा कि अरे मैं कैसे करूं, 2-3 बार हो सकता है, इससे मत फंस जाइए, ठीक है। गुड। ओके। You are so helpful. Today I'm feeling relaxed with talk with you, and I'm this types of those types of my past and my marriage life I'm sharing you, and in nobody in the world. So I'm saying because I'm first of you I'm saying I'm just like little ego in my heart, so I'm not staring anybody. हाँ, इसीलिए देखिए मैंने कोशिश की है कि आपका जो इंटेंशन है उसको देखने के लिए, और इसीलिए आज हम लोग कनेक्टेड है। और मैंने आपको बार बार बोला कि जब भी कोई जरूरत पड़े, ऐसा ऐसा हो सकता है, देखिए ऑब्जर्वर बनने के बाद भी कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, छोटा सा चैलेंज यहाँ पे जिसमें से फंस आप जाता है। सोच के भी नहीं निकाल पाते। तो हम्म, आप किसी ऐसा सिचुएशन में और कुछ भी जरूरत है तो आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प करने के लिए। अभी जो मैंने आपसे तीन तीन चीज सीखा। सबसे पहले कि अपने आप को अलग थिंकिंग करके सोचो कि वो चीज होता और मैं यहाँ होता तो क्या डिसीजन देता। ऑब्जर्वर, ये अभी तक मेरे लाइफ में नहीं था, अब मैं इसको अंदर लाऊंगा क्योंकि मैं खुद से ये करूंगा। दूसरा, ये जो आपने स्ट्रेटजी के बारे में बताई, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये दोनों चीज मेरे अंदर नहीं था। गुड। ग्रेट, करते रहिए। थैंक और यू। जरूर हम लोग जुड़े जब है तो इस कनेक्शन जिंदगी भर हो। कहीं भी देखिए आज तो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आप कहाँ कहाँ पे है, और कनाडा में है, अमेरिका में है, और इंडिया में किसी और स्टेट में है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो जरूर मेरे मेरे लिए आपके लिए बहुत सारा विशेष है, ब्लेसिंग्स है। आप अ, तुरंत आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और थैंक यू। क्या, और ये कनेक्शन तो चलता ही रहेगा। आप मुझे भी कांटेक्ट करेंगे, जब भी जरूरत पड़े कांटेक्ट करेंगे, मैं भी आपको कांटेक्ट करता रहूंगा बीच बीच में, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक चीज, अगर आपको ये सेशन कैसा लगा, ये बहुत पूरा अच्छा। खुल के बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैसेज होगा इस कम्युनिटी के लिए, इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि और भी लोगों के पास ये पहुंचे, वो जी, जाने। सबसे पहले तो जिस दिन मैंने आपसे फोन पे बात की और आपके साथ मैंने जो गॉसिप की, उसमें मेरे को उसी दिन फील हो गया है कि मेरे पास लॉट्स ऑफ पीपल है, मैं ऐसे ही 200 आदमियों को हैंडल करता हूँ और इन्वायरमेंट भी बहुत है, मैं पॉपुलर भी हूँ। हाँ, मेरा सब जगह मान सम्मान भी है। मगर मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि जहाँ मैं अपने दिल की बात खुलकर बात करता हूँ और सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे, ये भी थॉट मन में था और क्लियरफाई नहीं था। तो ये डर खत्म हुआ और फिर जब आपसे मैंने बातें की और फिर जब आपसे सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला। दिस इज सो हेल्पफुल फॉर ऑल पीपल। तो ये करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक रिलैक्स फील होता है माइंड में और आपको जो बहुत सारी मतलब बोझ जैसा सर पे लगता है, ये रिलैक्स फील होता है और मेरे को भी फिलहाल अभी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक यू अमित, and nice to meet you. You are really wonderful person, and that's why we are in this platform and we are connecting with each other. And definitely, we again, as I promise you,
as I told you, that whenever you need, you can connect me. Feel free to connect with me, and definitely I will respond to you. Okay. Okay. So take Okay. care and take all those steps what I shared and what you are doing. Okay. So take care. Take care. Bye bye. Bye bye. Nice to meet you. Nice, nice to meet you.